Hello everyone, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. We are here for you all so that you can prepare for all your examinations. Either they are the school examination or the Olympiad level education. Alright. So what we do here, we do provide you all the necessary information you need to crack both of these examinations. Alright. And that's what we deal with. All the things 6, 7 and 8 Olympiads, NTSC, NSCGS, PRMO and all the school examination from class 6 to 10. Alright, and that is the most basic thing what we want you to all so that you can definitely prepare for all your things. To get the study material or the DPP, you can definitely access them through our Telegram channel. All you have to do is to go on Telegram app, write the code TTB009, alright, and then join us, and then you can access all the DPPs and study material over there. Alright, the next thing I want to tell you is that this is a team which is very much doing hard work for you all so that you can achieve all your targets, all your goals and study very hard with us. Alright, the next thing I want to tell you is that if you want study material or if you want you can say a guided step-by-step instructions, or you can say a very much good process so that you can achieve all your targets, you should go for the packages we provide you, and for that you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. If you go on that website, you can definitely access two type of packages. Alright, the one is the whole package in which you getting the proper guidance. Alright, you will be getting the study material, comprehensive study material which is needed to crack any examination. Alright, the second thing, you will be getting recorded and live classes, and that is very much will be the supplementary of the study material, right? And the third thing, you will be getting the homework submission feature, and that's why you can submit your homework through the Google Classrooms, right? The third thing, you will be getting the bi-weekly quizzes. That means you will be getting tested twice a week. All right, and the last thing, you will be getting the periodic test papers, and that is important because they will give you the taste of the final examination. किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा लेवल होता है, मीडियम और हार्ड, और यू कैन से मीडिएटर. ऑलराइट, तो दैट इज़ अ थिंग कि अगर ऐसा होता है, ऑलराइट, तो आपको ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएगा हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो दैट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड दैट इज़ व्हाट वी प्रोवाइड अस इन द होल पैकेज. सो यू कैन डेफिनेटली go for the whole package if you want all of these. And if you think that you have studied enough but you want to test yourself, then you can definitely go for the test series. All right, and then in that you will be getting the periodic test papers, you will be getting bi-weekly quizzes, and then you will be getting the recorded and live classes. So you can definitely go for that too. To access the 30% discount, you have to write this code CY Live over there. You can definitely write that code, and then you will be getting access to the 30% discount. You can buy any package from talkingtextbooks.in. Alright, and even if you have any query regarding anything, you can definitely call us on this number 919549041111. You can definitely call us and all your queries will be resolved. Alright, now it's time to take the promise. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be definitely revising them on the daily basis, because revision is the key. You have to revise and you have to revise. Alright, कोई भी बच्चा जीनियस तो नहीं होता बचपन से ही, लेकिन वो अपने आप को जीनियस बना सकता है अगर वो रिपीटेडली वो काम करे. मीन्स यू कैन मेक योरसेल्फ परफेक्ट इन एनीथिंग. अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ही परफेक्ट बना सकते हैं. इसमें आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, राइट? सो रिविजन इज द की. यू शुड रिवाइज इट डेली, यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे, एंड दैट्स इट. आपको क्या करना है, डेली 15 मिनट्स के लिए स्टडी करना है, रिवाइज करना है, डेली 15 मिनट्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, एंड दैट्स इट. ऑल यही नीडेड है, एंड बस और कुछ भी नीडेड नहीं है. ठीक है, चलो तो अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं. जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया था. ठीक है, अगर आज टाइम मिलता है तो आज ही हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे. और एंड हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम मिल गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, देखेंगे. तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी हम एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो देन यू कैन डेफिनेटली से दैट कि भाई वहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हम ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल. वेन एवर वी टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन, और यू कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट द 1D मोशन.
ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि नंबर 1 पॉइंट तो हमें ये चीज़ रिमेंबर करनी है दैट कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन whenever we talk about the straight line motion, तो इस केस में क्या होता है, distance is always equal to displacement. ऑलराइट, और आपको पता है कि इस केस में अगर जब कभी भी ऐसे बातें होती हैं, ठीक है, अगर कभी भी ये सिनेरियो अगर होता है, सो यू कैन डेफिनेटली से कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जितने भी हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, आइदर फॉर द रेस्ट, आइदर फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, आइदर फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं वही बिल्कुल सेम टू सेम हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ किसके लिए, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सिर्फ उसी कंडीशन के लिए, बिकॉज द डायरेक्शन इज फिक्स देयर। ठीक है, इसी वजह से ये रीजन है इसका कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जितने भी हैं वो सभी के सभी हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बता सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसको देख पाएंगे और बोलेंगे कि दैट इज द ग्राफ ऑफ यू कैन से अ बॉडी एट रेस्ट, बिकॉज देखो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो आप देख सकते हैं 5 मीटर पे जो भी बॉडी थी वो 5 मीटर पर ही है, आफ्टर गेटिंग सो मच सेकेंड्स हैव पास्ड, फिर भी वो कहाँ पर है, 5 मीटर पर ही है। और राइट, तो यू कैन से कि भाई इन 5 सेकेंड्स के लिए वो जो बॉडी थी उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट वाज एट रेस्ट। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। बिकॉज क्यों मिलेगा ऐसा वेलोसिटी, डेफिनेट सी बात है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ will give you what, the velocity। और मैंने आपको बता दिया है कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होती है तो दैट मीन्स उसका जो स्लोप है वो 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका स्लोप कितना है, 0, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से, और ये बिल्कुल सही बात भी है कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो डेफिनेट सी बात है उसका जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। मूव नहीं कर रही है तो वेलोसिटी तो 0 ही होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जब कभी भी हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन वी कैन से कि जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, एंड दैट मीन्स दैट वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आप देख रहे होते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है, देन यू कैन डेफिनेटली से दैट कि वेलोसिटी इज 0 ओवर देयर, ऑलराइट, और आप बोलेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज एट रेस्ट यू गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग, वो है इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, दिस इज, आप लोग डेफिनेटली इससे जो है फैमिलियर होंगे क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा था, राइट। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था, दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड is you can say is constant in the constant time intervals of time, right। तो that means कि भाई जितना distance travel कर रहा है, या फिर you can say कि उसका जो speed है that is constant, और अगर वो एक ही direction में move कर रहा है तो we can say that velocity is also constant, right। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखेंगे 0 to 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ट्रैवल किया। अब अगर हम 1 से 2 तक की अगर हम 1 से 2 तक की बात करते हैं, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, वापस से 2 से 1 तक का जो है उनको 1 मीटर का डिस्टेंस मिला, राइट, डिस्प्लेसमेंट मिला। फिर अगर हम 2 to 3 सेकेंड की बात करते हैं तो भी हमें क्या मिला, यू कैन से हर कि 3 to 2 1 मीटर अगेन ट्रेवल किया। अगेन अगर हम 3 to 4 सेकेंड की बात करते हैं, सो यू विल बी सेइंग कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दैट मीन्स 4 to 3 अगेन 1 मीटर ट्रैवल किया। सो यू कैन से
कि 1 मीटर in 1 second this body is traveling, and that's why it is showing you the uniform motion. So whenever you get a straight line which is inclined, alright, ये ध्यान रखना है because it is inclined, right? आप देख पा रहे हैं ये straight line है but this is not a horizontal line, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, एंड ये क्या करती है, किसी एक एंगल पे मूव, डेफिनेटली किसी एक एंगल पे ये है ऑलरेडी, इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द टाइम एक्सिस. सो यू कैन से कि ये जो है दिस इज द स्ट्रेट लाइन बट दिस इज एन इंक्लाइंड लाइन टू. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप होगा, दैट मीन्स देयर इज सम वेलोसिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, और हम बोल सकते हैं टाइम इज चेंजिंग. जब दोनों चेंज हो रहे हैं दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी वेलोसिटी की. ऑलराइट, सो यू कैन से कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज द यूनिफॉर्म. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट. हम लोग लिख देते हैं दैट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, और वो भी स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ये तो डेफिनेट सी बात है कि भाई जब कभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन की देखते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, जब कभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे. अब जब देखेंगे तो हम बोलेंगे दैट स्लोप ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जब कभी भी हमें किसी भी तरीके का स्लोप मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये वैल्यू जो मिल रही है वेलोसिटी की वो मिलेगी कांस्टेंट. ऑलराइट, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट मिल जाएगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो पूरी की जहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं. सो यू कैन से कि ये जिस भी एंगल पे थी है तो ये स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ टोटली इंक्लाइन. तो आप बोलेंगे 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक जितना स्लोप है 1 से लेके 2 तक भी उतना ही स्लोप होगा, ठीक है. 2 से लेके 3 तक भी उतना ही स्लोप होगा, 3 से लेके 4 तक भी उतना ही स्लोप होगा. तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट स्लोप. क्यों कांस्टेंट स्लोप? बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है. इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट. तो दैट इज नॉट चेंजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. सो वी ऑलवेज गेट कि यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ऑलवेज वी गेट द अदर थिंग, और यू कैन से जो स्लोप होता है दैट इज द कांस्टेंट थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये है तो स्ट्रेट लाइन बट दिस इज इंक्लाइंड एंड दैट गिव अस सम वैल्यू ऑफ द स्लोप एंड दैट इज कांस्टेंट फॉर दैट, राइट. सो दिस इज द सेकेंड थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको डिस्प्लेसमेंट किस तरीके का मिल सकता है, ठीक है. देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो यू कैन से हियर कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, राइट. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा विद टाइम तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. सो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 1D मोशन, ठीक है. तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 तक में, ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या फिर यू कैन से बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का. देखेंगे 0 से लेके 1 तक की बात करें तो आप देखिए कितना कम जो है उसने डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. फिर अगर आप 1 से लेके 2 तक की बात करते हैं तो आप ये देखें कि कितना कम है. देखो सिर्फ इतना सा जो है इसने हाइट ऐसे लिया हुआ है, राइट. तो दैट मीन्स सिर्फ इतना सा ही इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस बॉडी का. अगर हम 2 to 3 की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट. तो यू कैन सी हियर कितना छोटा है, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है. फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 to 3. 2 to 3 के बात हो गई. 3 to 4 की अगर हम बात करते हैं, 3 to 4, सो यू कैन से यहाँ से यहाँ तक. नाउ यू कैन सी दिस इज वेरी मच, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो पहले देखो डिस्प्लेसमेंट कितना कम था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. और व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल सेकंड तो यहाँ देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि विद टाइम, देखो टाइम कांस्टेंट है,
टाइम यहाँ पे हम 1 सेकेंड का ही ले रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं, ऑलराइट। अब देखो, अभी हमको बात करना है स्लोप का, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कि कोई भी कर्व है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, राइट, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब एक कांस्टेंट कर्व नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक, येलो, ठीक है, तो देखेंगे येलो तो सेम हो जाएगा, क्या ले, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन भी वैसे सेम टू सेम ही है। देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो है मैं स्लोप खींचूँ, पता तो नहीं चलेगा तुम लोग को, मुझे दूसरा कलर ही लेना पड़ेगा। रेडी एक ऑप्शन है हमारे पास, और येलो भी एक ऑप्शन हो सकता है। देखेंगे अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं, स्लोप का मतलब जब कभी भी हम किसी कर्व का स्लोप लेते हैं, देखेंगे जैसे ये एक कर्व है, दिखाई दिया ना सबको, देखो जैसे ये एक कर्व है, ठीक है, और मुझे स्लोप बताना है किसी भी पॉइंट पे, अगर स्लोप बताना है तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसे लाइन जो है इसको ड्रॉ कर दूंगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो दिस इज द लाइन, और ये जो लाइन होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्लोप एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हो। तो कर्व का क्या केस होता है, कर्व का एक कांस्टेंट स्लोप नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्लोप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे आपको लाइंस जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो कि कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट, ठीक है, उसको टेंजेंट बोला जाता है। तो अब हम इस कर्व पे क्या करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जीरो पे जब हमने किया, सो वी गेट अ व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर मैंने जब 1 सेकेंड पे जब ये ड्रॉ करा, सो आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। फिर मैंने 2 सेकेंड पे वापस से जो है एक टेंजेंट बनाई, आई गेट अ लिटिल बिट मोर इंक्लाइंड लाइन। 4 पे आके मुझे वापस से जो है स्लोप और ज़्यादा मिल गया, ठीक है। फिर जब मैं 3 था, 4 पे वापस से जो है मैंने ड्रॉ किया, सो आई गेट अनदर, यू कैन से अनदर ग्रेटर स्लोप, एंड व्हेन आई ड्रॉ इट एट 5, सो आई गेट दिस अ वेरी मच हायर स्लोप। तो आप ये बात देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ, 3 सेकेंड पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ, 4 सेकेंड पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ, और 5 पे थोड़ा और। दैट मीन्स कंटिन्यूसली स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या मिलता है, वेलोसिटी। दैट मीन्स दिस इज शोइंग कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। सो यू कैन से कि भाई यहाँ पर जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, हम अभी भी 1 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऑलराइट, एज स्लोप इज इंक्रीजिंग। ऑलराइट, तो आप ये लोग डेफिनेटली बता सकते हो इस ग्राफ को देख के, भाई सिंपली आप देखो यहाँ से ऐसा स्लोप था, ठीक है, ऐसे अपना हाथ से खुद से जो है आप कर्व पे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। फिर अब कुछ ऐसा टच होने को मिल रहा है इस कर्व के साथ, फिर अगेन जो लाइन मिलेगी हमें जो कि कर्व को टच करते हुए जाती है, ठीक है, तो वो हमको मिलेगी थोड़ी सी और टेढ़ी, ठीक है, थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगी, अगेन थोड़ा ज़्यादा, तो दैट विल गिव यू अ व्हाट, अ इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। और इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब हुआ क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू कैन से दैट दिस इज द ग्राफ व्हेनेवर कोई भी y के ऊपर रखी हुई कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, अगर इस तरीके का ग्राफ शो करती है तो हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही नॉन यूनिफॉर्मली जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आप उसका स्लोप अगर निकालेंगे तो एक नई क्वांटिटी मिलेगी और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वी कैन से दैट। अब देखते हैं हम डिक्रीजिंग के केस में हमें कैसा ग्राफ मिलता है,
ठीक है, और वो कुछ ऐसा मिलता है डिक्रीजिंग के केस में। और यहाँ पे भी मैं आपको बता सकती हूँ कि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, लेट मी टेल यू दैट। आप 0 से लेके 1 तक के केस में देखो कि देयर इज सो मच इंक्रीज इन दी डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो वैल्यू कितना ज़्यादा है ना, 0 से लेके 1 सेकेंड तक का हमने देखा है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। सो वी विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं सिर्फ 1 और 2 की बात करूँ, alright, when I talk about 1 and 2 only, so I would be getting यहाँ से लेके यहाँ तक का increase, ठीक है। So I would be getting only this much increase, alright. Now let's talk about 2 to 3 सेकेंड। अभी जब मैं 2 to 3 सेकेंड में देखूंगी तो देखो कितना कम जो है डिस्प्लेसमेंट हमको मिला है, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है 2 to 3 सेकेंड में। मतलब ये जो कर्व 2 to 3 यहाँ तक पहुंचा, तो आई गेट जस्ट दिस इंक्रीज और कुछ भी नहीं, राइट। 3 to 4 में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। लुक, इतना सा जो है जो सिर्फ इतना सा चेंज दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और अगर मैं 4 to 5 की बात करूँ तब तो बहुत मतलब पॉइंट साइज ही हो गया मेरे लिए, तो ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड के अंदर, यानी फर्स्ट 1 सेकेंड के अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट था। फिर अगले नेक्स्ट सेकेंड के अंदर यू गेट जस्ट दिस मच, नेक्स्ट सेकेंड के अंदर यू गेट ओनली दिस मच, एंड नेक्स्ट सेकेंड के अंदर यू कैन ओनली दिस मच। तो यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग continuously alright, so you can say that velocity भी डिक्रीज हो रही है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, राइट। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं, स्लोप देखते हैं। स्लोप में आपको बताऊंगी जो है अब वहाँ चले गए, ठीक है। स्लोप में आपको बताऊंगी येलो कलर से, ऑलराइट। तो अब देखेंगे हम इस पॉइंट पर, यानी लेट्स से हम 0 का जो सेकेंड था उस पर ड्रॉ करते हैं स्लोप क्या होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी मच हाई वैल्यू। देखेंगे इस तरीके का स्लोप मुझे मिला है, तो इट इज़ वेरी मच हाई वैल्यू। तो मतलब पहले से स्पीड जो है, मतलब वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1 पर आते हैं, 1 पर आई वुड बी गेटिंग इस तरीके का जो है मुझे लाइन मिल रहा है। सो दिस इज़ द लाइन जो कि अब वेरी मच थोड़ा डिक्रीज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड में वापस से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। वो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रही है। फिर एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी। फिर एक और लाइन 4 सेकेंड पे इस तरीके से मिलेगी, एंड देन मुझे 5 सेकेंड पे इस तरीके से मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है नहीं बट ऑलमोस्ट है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है। सो यू कैन से कंटिन्यूसली द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। देखेंगे फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और अभी ऐसे है, राइट। सो यू कैन से कितना ज़्यादा था पहले, जो स्लोप है वो कितना ज़्यादा था, मतलब देयर इज सम वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, एंड देन इट बिकम्स लाइक दिस, एंड देन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो 5 सेकेंड के इंटरवल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड हो गई, दैट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो गई। सो यू कैन से द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द स्लोप इज डिक्रीजिंग। वी हैव सीन दैट, राइट। तो वी कैन से दैट इस केस में क्या होगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। लेट मी राइट इट, आपको येलो से हो सकता है समझ में नहीं आए, ठीक है। तो वी कैन से दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ऑलराइट। सो यू कैन से, इससे हम जो है इन्फर कर सकते हैं दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर यू सी सच टाइप ऑफ ग्राफ, whenever you see such type of graph, always say that this is telling you something. What is telling you that y axis पे जो भी वैल्यू है या फिर जो भी क्वांटिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ठीक है। वो आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है अगर आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है तो, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली से दैट। सो दिस वाज इट, ऑलराइट। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ स्टडी किए हैं, रेस्ट का, यूनिफॉर्म मोशन का और 2 नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट। लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि भाई अगर हमें उनको वापस से जो है रिवाइज करना है तो लेट मी टेल यू दैट अगेन, ठीक है। तो आप डेफिनेट सी बात है देख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, एंड यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ डिस्प,
ऑलराइट, एंड आई एम राइटिंग हियर टाइम t। ये कब का केस हो गया, जब हम एट रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। रेस्ट पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन का केस। यूनिफॉर्म मोशन का केस, यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगी, ठीक है, और इसका जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ग्राफ, ठीक है। तो ये भी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम लोगों ने किया है। सो यू कैन से द स्लोप इज कांस्टेंट। अब क्योंकि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, तो दैट विल बी गेटिंग यू वेलोसिटी। सो यू कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑलराइट। और इस केस को हम बोल सकते हैं दैट यूनिफॉर्म मोशन। Do remember, again I'm telling you that we are talking about the 1D motion only, alright, that's why we are making such type of graphs which is totally similar to the distance time graph. Now let's talk about the non-uniform, और उसके अंदर क्या हो रहा है, the slope is increasing, so you will be getting what, you will be getting increasing velocity, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं slope is increasing, alright, and that's why what, velocity is also increasing, ठीक है। so this is showing you the non-uniform motion, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम डिक्रीजिंग वाले की केस की बात कर सकते हैं, तो उसमें हमें किस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है, ऑलराइट। तो दैट वुड बी इट। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम आ गया, एंड वी कैन से स्लोप इज डिक्रीजिंग, ऑलराइट, स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो वी कैन से वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वी कैन डेफिनेटली लर्न दिस, ऑलराइट। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि आपको कभी कभी इन चारों का कॉम्बिनेशन आपको ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। एंड उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस में बताऊंगी मैं उसको एग्जाम्पल, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कि आपको सभी तरीके का जो है मिल सकता है, ऑलराइट। अब आप डेफिनेटली बता सकते हैं किसी भी बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो बिल्कुल हम स्पीड की तरह डील करेंगे उसको, ठीक है। वी विल बी डीलिंग विद ऑल दिस। नाउ लेट मी टेल यू वन क्वेश्चन, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव हायर वेलोसिटी, ऑलराइट। सो आई एम ड्रॉइंग, ऑलराइट, आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ हियर, and this is the displacement on the y-axis and time on the x-axis, alright। अब आप यहाँ पर जो है देखो ग्राफ, तो जो मैंने अभी नहीं बनाया, oh alright, this is A, this is B, this is C, alright, and I should make another one, ठीक है, मैं एक और बनाती हूँ, and that is totally not good, ठीक है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। एक और हम लोग जो है बनाते हैं, एंड वो होगा कुछ ऐसा होगा वो, ठीक है। तो ये हैं आपके पास चार ऑप्शंस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 1 इज ए ज़्यादा वेलोसिटी पे है, ऑप्शन नंबर बी इज बी ज़्यादा वेलोसिटी पे है, ऑप्शन नंबर सी इज सी ज़्यादा वेलोसिटी पे है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा वेलोसिटी पे है। नाउ टेल मी, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स आपको दी हैं, प्लीज़ इनको आप स्ट्रेट लाइन ही देखिए, ठीक है। ये सबकी सब मैंने स्ट्रेट लाइन ही बनाई है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इन सब में बहुत ज़्यादा है, कंपेयर देम, ऑलराइट, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मुझको पता है आप लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है, ठीक है, ग्राफ्स में, वो आप डेफिनेटली देखें और बताइए, ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो है
किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। एंड आपको क्या करना है, आपको अगर इस तरीके का ग्राफ कभी सिचुएशन मिलती है जैसे कि अभी आपको मिल रही है, राइट, तो अगर आपको इस तरीके का सिचुएशन मिलता है, ऑल यू हैव टू डू इज टू नो द स्लोप। आप इन सबका स्लोप कंपेयर करो, ठीक है। और स्लोप तो अपन हाथ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये है डी का स्लोप जो कि बहुत ही कम है, तो मतलब ये जो डी है बहुत कम वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बी का देखूं तो बी का है इतना, ठीक है, लेकिन ए का तो उससे भी ज़्यादा है। सो वी कैन से कि बी से ज़्यादा बड़ा ए है। तो अभी हमारे पास सिर्फ ए और सी कंपैरिजन में बचा, ठीक है। देखो हम एक एक धीरे धीरे करके ना अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं। पहले तो हमने डी देखा जिसका स्लोप देखो कितना कम है, तो इसका मतलब ये कम वेलोसिटी से जा रहा है, तो डी तो हमारा हो गया है कैंसिल, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये जो डी है हमारा कैंसिल हो गया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। बी को देखते हैं। बी का स्लोप ये रहा, लेकिन ए का स्लोप उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बी भी हमारे ऑप्शंस में से हट जाना चाहिए बिकॉज उसका स्लोप भी कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए एंड सी। तो अब देखो ए जो है वो इतना ज़्यादा स्लोप पे है, एंड लेट्स टॉक अबाउट सी। तो मुझे ऐसे कम करना पड़ रहा है, राइट, मुझे ऐसे कम करना पड़ रहा है अगर मैं सी को मैच करवाना चाहती हूँ, तो दैट मीन्स सी भी कम पे है। सो द ओनली ऑप्शन रिमेन्ड इज ए एंड दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। तो वी कैन से दैट कि ए जो है वो हायर वेलोसिटी पे है बिकॉज उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है मोशन, ठीक है। हम लोग ये चीज़ नहीं मैटर कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड और यू कैन से द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे जर्नी में, मान लीजिए यहाँ तक की जर्नी में अगर मैं मानना चाहूँ फ्रॉम जीरो टू दैट जर्नी, तो उस केस में इनमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मुझे किसकी मिल रही है, ए की मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल बिल्कुल स्लोप से पता कर सकते हैं कि किस बॉडी का ज़्यादा वेलोसिटी होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको जो है बताती हूँ, राइट, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। एंड इस क्वेश्चन में हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव सेम वेलोसिटी। कौन से ऐसा ग्राफ है जिसकी वेलोसिटी सेम है, और मैं ग्रीन कलर से जो है ग्राफ बना रही हूँ। एक्स एक्सिस पर टाइम बना दिया गया है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने पॉइंट आउट कर दिया है दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्राफ, ठीक है। अब आपको बताना है सेम वेलोसिटी किसकी है ना, और मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको देने वाली हूँ सिचुएशंस। तो पहला ग्राफ तो भाई ये गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ जो है वो ये गया, ऑलराइट। तीसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, एंड चौथा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, ऑलराइट। अब जो है आप मुझे बताइए कि कौन सी बॉडी का, लेट मी मार्क दैट, ठीक है, ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। नाउ टेल मी कौन कौन से ग्राफ जो हैं, यानी ए बी सी डी में से आप मुझे ये बताइए सेम वेलोसिटी पर कौन कौन है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए सेम वेलोसिटी पे कौन कौन है, और आप बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सोच के बनाया है ये, तो मेरे को तो आंसर पता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेल मी कि यहाँ पर कौन कौन जो है, पेयरिंग बता दो आप तो बस, तो पेयरिंग से भी पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन जो है वो सेम वेलोसिटी पे है, ठीक है। तो आप मुझे पेयरिंग बता दो कि ए बी एक सेम वेलोसिटी पे हैं, या फिर सी डी सेम वेलोसिटी पे हैं, या फिर ए सी वेलोसिटी पे है, मतलब सेम वेलोसिटी पे हैं, या फिर बी डी सेम वेलोसिटी पे है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है पेयर्स। एंड आपको कैसे पता चलेगा सेम वेलोसिटी, आपको चेक करना है स्लोप, ठीक है। आपको क्या करना है, स्लोप चेक करना है, और ये तो विजुअली क्लियर है, सिर्फ देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फाइनली जो है, जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वेलोसिटी, एंड सेम वेलोसिटी का मतलब जो हम इन्फर कर सकते हैं वो है सेम स्लोप, ऑलराइट। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट स्लोप, और वो भी सेम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए है, लेट मी अगेन टेल इट विद माय हैंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो सी है, ठीक है, और जो ए है बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इनका जो स्लोप है दैट इज टोटली सेम, सो वी कैन से भाई कि ए एंड सी आर एट सेम वेलोसिटी, ऑलराइट, दे आर एट सेम वेलोसिटी,
ऑलराइट, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो B है और जो D है वो भी सेम वेलोसिटी में है बिकॉज द स्लोप इज सेम. ऑलराइट, दे आर नॉट मीटिंग, दे आर पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, सो यू कैन से सो दिस इज B. ऑलराइट, एंड आई हैव रिटन दैट. ठीक है, B एंड D आर एट सेम वेलोसिटी. ठीक है, तो ये जो है सेम वेलोसिटी पे हैं एंड दैट्स हाउ वी कैन से दैट ए बी नहीं AC एंड BD आर एट द सेम वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेट सी सिर्फ आपको ये देखना है कि स्लोप कैसा है. जैसे ही स्लोप पता चला वेलोसिटी पता चल गई, राइट. आप ये बात ध्यान में देख सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 1, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, कि भाई कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो आप दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर तरीके का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 to 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इंटरवल 2 to 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन से कि भाई 1 to 2 में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 3 to 4 में कितना डिस्प्लेसमेंट है. तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं. नेक्स्ट आप पता कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो आपने पता कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी. स्लोप आप देख लेंगे तो आपको जो है वेलोसिटी पता चल जाएगी, राइट. इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी आप दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंड वन इज स्पीड, जिसको आप स्लोप से कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो यू विल बी गेटिंग टू थिंग्स फ्रॉम दी वन ग्राफ, ऑलराइट, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ऑलराइट. तो आप फटाफट से तो पहले से देख लो. ठीक है, देख तो लिए ही है हम लोगों ने. ऑलराइट, अब हम जो है देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ बताऊंगी, लेकिन आपको दिमाग में क्लियर रख लेना है कि नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड. ठीक है, तो यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन जो है, और मैं आपको डेफिनेटली ये बात बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो कितना हेल्पफुल है ये स्पीड टाइम ग्राफ. आप 3 क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर वन जो है वो है डिस्टेंस. आप स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 2 स्पीड, आप स्पीड टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 3 यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन टू. ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स राइट दैट कि भाई वी कैन कैलकुलेट 3 quantities from speed time graph. ठीक है, कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ. नंबर 1 तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेट सी बात है आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस. ठीक है, वो आपको कौन देगा ये भी मैं आपको बताऊंगी. आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड, कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी. नंबर 3 आप कर सकते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, और कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, तो देखेंगे पहला डिस्टेंस, कैसे हम डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सकते हैं. तो हम लोग तो डिस्टेंस ट्रैवल कर ही सकते हैं, डेफिनेट सी बात है. स्पीड टाइम ग्राफ से आप किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको जो है कैलकुलेट करनी है. और वो आपको कैसे मिलेगा, जब आप मुझे बोलिए कि जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, पूरा का पूरा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, राइट. अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला. आप क्या करेंगे, आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. आप यही करने वाले हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आपको डिस्टेंस मिलेगा. और ये चीज़ हम यहाँ कैसे देख सकते हैं, देखोगे यहाँ पर स्पीड है, मतलब y एक्सिस पे स्पीड है, x एक्सिस पे टाइम है, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग द बोथ. तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग व्हाट, द एरिया. Alright, you are calculating the area. You are multiplying this time axis with the speed. So you are multiplying this and this
together and you will be getting the area under the curve and that's why ये जो distance है ये क्या होता है, this is the area of the speed time graph. ठीक है, so whenever you want to calculate the distance, all you need to do is to calculate the area under the speed time graph. All right, the area under means ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है ना, ग्राफ की लाइन, इसके बीच में और टाइम एक्सेस के बीच में जितना भी एरिया है आप उसको कैलकुलेट करो. वो ट्रायंगल हो सकता है, वो कोई कर्व हो सकता है. ठीक है, वो अभी तो देखो अब रेक्टेंगल दिख रहा है तो इट्स सो इजी टू कैलकुलेट, राइट. रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट दैट. तो आप अगर आप डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको किसके लिए जाना पड़ेगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी एरिया. तो अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और एरिया भी होना चाहिए किसके बीच में, ये जो ग्राफ है डिवाइडेड बाय टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना, ये एरिया आपको जो है कैलकुलेट करना है. एंड दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी. ठीक है, वो भी कितना, 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यू आर गोइंग टू गेट दैट. ठीक है, अब दूसरी चीज जो है स्पीड हमारी, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल देखते ही आपको पता चल जाएगी. मैं बोलती हूँ आपको, मुझे 2 सेकेंड पे बताइए स्पीड कितनी है, तो आप क्या करेंगे, सीधे जाएंगे ऊपर एंड यू विल बी टेलिंग दिस इज द पॉइंट. सो देयर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड था 2 सेकेंड पे. आप तो ग्राफ को रीड करके ही सिंपली बता सकते हो. तो स्पीड जो है तो आफ्टर रीडिंग ग्राफ आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली ये तो विजुअली हो जाएगा, बाय रीडिंग आप बता सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बोलो, अगर आप स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दोगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, स्पीड को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग, एक्सेलरेशन. सो यू विल बी गेटिंग द स्लोप. अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा y एक्सिस डिवाइडेड बाय द z x एक्सिस, और y पे कौन है, स्पीड, x पे कौन है, टाइम. सो यू विल बी राइटिंग स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, सो यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन. तो आप अगर इस ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो तो यू विल बी गेटिंग द एक्सेलरेशन. सो यू आर गेटिंग 3 थिंग्स फ्रॉम वन ग्राफ. यू विल बी गेटिंग डिस्टेंस, you will be getting speed and you will be getting acceleration. Alright, so definite सी बात है कि आप तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो easily using just a little graph, जो कि इस तरीके से हो सकता है. Alright, and this is the graph of the constant speed. मतलब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं constant speed है, मतलब मोशन तो हो रहा है, बॉडी मूव तो कर रही है, डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रहा है, राइट. स्पीड कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं द स्लोप इज 0. मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है. स्लोप इज 0, सो यू कैन से एक्सेलरेशन इज 0 हेयर. ठीक है, तो आप यहाँ सिंपली बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 बिकॉज स्लोप इज 0 हेयर. ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी कैन से कि स्पीड टाइम ग्राफ का ऐसा, जब कभी भी स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट कांस्टेंट स्पीड, तो जब स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो डेफिनेट सी बात है एक्सेलरेशन 0 होता है. ये तो हमने सीखा था. ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, हमने ये चीज़ ऑलरेडी सीख चुका है कि भाई जब कभी भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट. एंड दैट्स व्हाट इट इज. स्लोप भी 0 तो एक्सेलरेशन 0. सो येस, इट इज ट्रू, एंड सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स मैच हो रहे हैं. सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट थिंग, राइट. तो आप इस तरह डेफिनेटली देख सकते हैं कि आपको जब कभी भी कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही होती है तो यू कैन गो फॉर दी स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल गिव यू दी एक्सेलरेशन, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली से दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थिंग, जो नेक्स्ट थिंग हम लोग जो देखने वाले हैं, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी दी स्पीड टाइम ग्राफ. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट. स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड यू कैन से दैट कि यहाँ पर क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंट रेट पे, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ स्लोप. ऑब्वियसली यू कैन सी देयर कि भाई इंक्लाइंड लाइन है तो स्लोप तो होगा, ठीक है, और कांस्टेंट स्लोप होगा. कांस्टेंट क्यों, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग अ कांस्टेंट स्लोप. ठीक है, अ कांस्टेंट स्लोप मिलेगा आपको, एंड दैट्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो व्हेनेवर यू गेट अ स्पीड टाइम ग्राफ लाइक दिस, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है. देखो 0 पे तो 0 है स्पीड, 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 1 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड.
3 सेकेंड पर उसकी स्पीड कितनी हो गई है? 3 मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड पर कितनी स्पीड हो गई है? 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पर कितनी स्पीड हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन से दैट एवरी सिंगल टाइम अ सेकेंड इज गोइंग ऑन, और स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट पर, एंड दैट्स व्हाई इसका जो स्लोप होगा, जो कांस्टेंट स्लोप होगा, दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी आर गेटिंग एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से मिलता है, सो वी कैन से कि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ऑलराइट, बॉडी जो है मूव कर रही है कंटिन्यूसली। ऑलराइट, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मुझे चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, तो मैं देखने वाली हूँ चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ टेल मी, जीरो से, वहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ था ना, तो जीरो से लेके यहां तक कितना इंक्रीज हुआ? 5। सो वाई एक्सेस में तो भाई चेंज कितना हुआ? 5। जीरो से लेके 5 था तो 5 माइनस 0 हुआ, राइट। अगर मैं एक्स एक्सिस पे चेंज देखूं तो 0 से लेके 5 हुआ, तो देयर वुड बी 5 माइनस 0, सो यू वुड बी गेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So that is the acceleration. Alright, so that means there is a constant acceleration of 1 meter per second square, the body moving with this type of motion, right? Now let's talk about distance. Distance आप कैसे calculate कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था area से, है ना? तो मतलब you will be watching the area. कौन सा area आपको देखना होगा? कौन सा एरिया देखना होगा? ये वाला। इस ट्राइंगल के अंदर जो एरिया है ना, ये एरिया आपको जो है देखना है, ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, जो मैंने रेड से पूरा ऐसे कर दिया है। तो आपको क्या करना है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, है ना, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया, यू शुड गो फॉर द ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, और वो क्या कहता है? वो कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एंड वो क्या है? बेस कितना है हमारा? 0 से लेके 5, तो बेस तो है 0 से लेके 5। हाइट कितना है? 0 से लेके 5, तो हाइट भी है 0 से लेके 5। सो यू विल बी गेटिंग हाफ इंटू 5 इंटू 5। 5 से कितना होता है? 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5। सो यू विल बी गेटिंग 12.5 मीटर जो है वो इस बॉडी ने एरिया कवर किया है 0 से लेके 5 सेकेंड तक के लिए। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स। भाई आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, और यू विल बी गेटिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल डील विद सच टाइप ऑफ ग्राफ। और राइट, जो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि ये कांस्टेंट रेट का डिक्रीजिंग वाला है। और राइट, फिर हम वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ हम देखने वाले हैं बहुत जो है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड यू कैन डेफिनेटली नो दैट कि आप क्या कर सकते हैं। सभी बच्चों को बता सकते हैं दैट यू कैन स्टडी हियर फ्रॉम फ्री एंड डेफिनेटली, और सारी चीज़ों को सब कुछ डील जो है कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड डू इट। अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, भाई तुमको कुछ नहीं जो है समझ में आया, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।